Walaikum assalam. Can you guys hear me? Please take out your morphology books on page number 70 and your maxillary premolar models, first and second, upper 4 and upper 5. I'm waiting for rest of your fellows to join before I start the lecture. Can you guys see these models clearly? Can you guys see this clearly? Open up your books at page number 70 and please take out your models for first and second premolars. What time is it? It is 11:06 already. इतनी देर क्यों लगाते हैं आपकी क्लास ज्वाइन करने में सेशन? सो रहे होते हैं क्या? Okay, have you guys opened your
books on page number 70 of Fuller's? And do you have models for first and second maxillary premolar? If yes, please tell me so that I can continue with the lecture. Please. Ouch. Okay. I'm going to read out page number 70, permanent premolars. Permanent premolars are about 8 in number in the permanent dentition, with 4 per arch and 2 in each quadrant, which means you have 4 maxillary premolars and 4 mandibular premolars, out of which you have 2 right maxillary premolars and 2 left maxillary premolars, and similarly you have 2 right mandibular premolars and 2 left mandibular premolars. These premolars, they are located at position number 4 and 5 from the midline, which makes them the tooth 4 and tooth 5. And this places these teeth between the canines and the molars. The premolars are designated as first and second premolars. So the tooth number 4 is called the first premolar and the tooth number 5 is called the second premolar, according to their position relative from the midline. The one that is closest to the midline, that is number 4, obviously is called the first premolar, and the one that is away from the midline, that is number 5, is called the second premolar. So you have maxillary first right premolar and maxillary second right premolar, और इसी तरह लेफ्ट साइड के 2 premolars, mandibular भी इसी तरह नेम करते हैं हम, right and left, first and second. Along with molars, premolars comprise the group of teeth collectively referred to as posterior teeth. अभी तक हमने anterior teeth पढ़े थे, जिसमें हमने incisors और हमने canines पढ़े थे. अब हम posterior teeth पे आ गए हैं. The first posterior teeth in your arch is the first premolar. Second premolar is the second, and all the molars are posterior teeth. तो ये जो जितने भी premolar onwards दांत हैं, ये सारे posterior teeth हैं. As previously indicated, major anatomical and functional differences that exist between posterior and anterior teeth, इन दांतों में वो सारे differences होते हैं. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि anterior दांतों का इंसाइजल एस्पेक्ट होता है, posterior दांतों के ऊपर ये जो ब्रॉड सा आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस सारे टेबल को ऑक्लूजल एस्पेक्ट या ऑक्लूजल टेबल कहते हैं. एंटीरियर दांतों के अंदर लिंगुअल साइड के ऊपर मार्जिनल रिजेस थी, पोस्टीरियर दांत में इस जैसे कि ये है, इस साइड के ऊपर मार्जिनल रिजेस हैं, ऑक्लूजल टेबल की बाउंड्रीज बना रही हैं ये और ये. तो इस तरह के कुछ मेजर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस एंटीरियर और पोस्टीरियर दांतों में एग्जिस्ट करते हैं. द टर्म bicuspid is often used referring to premolars. This term, which signifies 2 cusps, is somewhat inaccurate description for the group as a whole, as further study of premolars would reveal. अगर तो हम maxillary premolars की बात करें तो maxillary premolars के 2 cusp है, एक ये cusp है, एक ये cusp है, इसी तरह एक ये cusp है और एक ये cusp है. तो इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं bicuspids. लेकिन जब मैंडिबुलर प्रीमोलर्स आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी लिंगुअल साइड के ऊपर 1 से ज़्यादा कस्प होते हैं. तो ये टर्म इतनी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीमोलर्स को बाइकस्पिड कहा जाता है, जैसे कि केनाइंस को कस्पिड्स कहा जाता था. As the canine is intermediate between posterior and other anterior teeth, the premolars are transitional between canines and the molars in function, form and arch position. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह canine ट्रांजिशन कर रहा था फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर टीथ इन फॉर्म, पोजिशन एंड फंक्शन, इसी तरह प्रीमोलर्स केनाइन से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं इनटू मोलर्स इन फॉर्म, फंक्शन एंड आर्च पोजिशन. हाउ इज दैट function differing or transiting?
The premolars mainly supplement the grinding of the molars during mastication, but there still is tearing and piercing component similar to that of the canine present. The premolars contribute less to aesthetics and phonetics than do the anterior teeth, but provide a greater share of these functions than do the molars. अब function में आपके जो premolars हैं ये किस तरह ट्रांजिट कर रहे होते हैं फ्रॉम केनाइन. केनाइन का क्या फंक्शन था? केनाइन का फंक्शन था मेनली टीयरिंग एंड पियर्सिंग. अब चूंकि प्रीमोलर्स का ऑक्लूजल टेबल है तो दे हैव द एबिलिटी टू ग्राइंड द फूड, जो मोलर्स का फंक्शन है. लेकिन इनका ऑक्लूजल टेबल इतना वाइड नहीं है जितना ऑक्लूजल टेबल मोलर्स का वाइड है, इसलिए ये ग्राइंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कर सकते. इनके अंदर अभी भी थोड़ा सा पियर्सिंग और टीयरिंग का कंपोनेंट के फंक्शन का कंपोनेंट प्रेजेंट है. सो दैट इज हाउ दे आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम द केनाइन फंक्शन टू द प्रीमोलर फंक्शन. दूसरा, केनाइंस का बीइंग एंटीरियर टीथ बहुत इंपॉर्टेंट एस्थेटिक्स और फोनेटिक्स में फंक्शन था. अब प्रीमोलर्स का एस्थेटिक्स और फोनेटिक्स में बहुत स्लाइट सा रोल है और मोलर्स का तो बिल्कुल भी नहीं है. सो दैट इज हाउ प्रीमोलर्स आर ट्रांजिटिंग इन फंक्शन फ्रॉम एंटीरियर टीथ टू पोस्टीरियर टीथ. फॉर्म में किस तरह ट्रांजिट करते हैं? द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम द केनाइन इंक्लूड द इंक्रीज नंबर ऑफ कस्प्स, marginal ridge location, root structure, the presence of an occlusal surface. The premolars always exhibit one facial cusp just like canines, but the number of lingual cusp can range from none to 2. Most commonly there is one lingual cusp, hence the derivation of the term bicuspid. अब फॉर्म में प्रीमोलर कैसे केनाइन से ट्रांजिट करता है? अच्छा, फॉर्म में कैसे करता है? केनाइन का कितने कस्प थे? एक कस्प था. प्रीमोलर के कितने हैं? 2. तो नंबर ऑफ कस्प में डिफर कर रहा है. केनाइन में मार्जिनल रिजेस कहाँ लोकेटेड थी? लिंगुअल सरफेस के ऊपर. इसमें मार्जिनल रिजेस कहाँ लोकेटेड है? ऑक्लूजल सरफेस के ऊपर. यहाँ पर ये मार्जिनल रिजेस हैं, ऑक्लूजल सरफेस की टर्मिनेशंस बना रही हैं. रिज लोकेशन हो गई, नंबर ऑफ कस्प हो गए, रूट स्ट्रक्चर. केनाइन का रूट स्ट्रक्चर, केनाइन की सिंगल रूट होती थी, इसमें फर्स्ट प्रीमोलर की 2 रूट्स होती हैं. नंबर ऑफ रूट्स और रूट स्ट्रक्चर जनरली भी वेरी करता है क्योंकि कस्प क्राउन ऑब्वियसली बड़ा है तो रूट्स भी इसी हिसाब से ब्रॉड होंगी. उसके अलावा केनाइन का इंसाइजल एज था, प्रीमोलर्स का ऑक्लूजल टेबल है पूरा, इतना ब्रॉड ऑक्लूजल टेबल. उनकी सिर्फ इतनी सी जगह थी, सिर्फ इतना सा एज था. ठीक है, तो ये हो गए फॉर्म के फंक्शंस. एक बकल कस्प होता है हमेशा और लिंगुअल साइड के ऊपर एक मिनिमम और मैक्सिमम 2 कस्प्स होते हैं. ठीक है, इसलिए हम इनको बाइकस्पिड्स कहते हैं. दिस इज हाउ द प्रीमोलर्स आर ट्रांजिटिंग इन फॉर्म फ्रॉम एंटीरियर टुवर्ड्स पोस्टीरियर टीथ. आर्च पोजिशन, प्रीमोलर्स 4th और 5th पोजिशन ऑक्यूपाई करते हैं फ्रॉम द मिड लाइन, thus leaving the anterior teeth mesial to them and 3 molars distal to them in each quadrant. The 2 maxillary premolars are much more alike in shape, size and function than the mandibular molars. अब ये maxillary molars को अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, बहुत ज़्यादा. दोनों स्क्वायरिश से हैं. एक बड़ा है और एक छोटा है. जो बड़ा वाला है वो फर्स्ट है, जो सेकंड है वो छोटा होता है. लेकिन जो मैंडिबुलर मोलर्स होते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा रिजेंबल नहीं करते जितने मैक्सिलरी प्रीमोलर्स एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं. Because premolars erupt in the arch previously occupied by the deciduous molars, फर्स्ट और सेकंड डिसिडुअस मोलर की जगह पे फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर आते हैं. तो कौन से दांत हुए? सक्सीडेनियस या नॉन सक्सीडेनियस? सक्सीडेनियस हुए. दे आर द ओनली सक्सीडेनियस टीथ विच हैव बीन नेम्ड डिफरेंट देन देयर डिसिडुअस काउंटरपार्ट्स. अभी तक जो भी सक्सीडेनियस टीथ थे उनका वही नाम होता था जो पिछले डेसिडुअस टूथ का होता था. जैसे इंसाइजर की जगह इंसाइजर आया था, केनाइन की जगह केनाइन आया था. लेकिन अब डेसिडुअस मोलर्स की जगह परमानेंट प्रीमोलर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट प्रीमोलर्स. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द परमानेंट मैक्सिलरी प्रीमोलर्स. इंट्रोडक्शन.
Maxillary premolars possess a number of general characteristics which aid in differentiating them from other posterior teeth, especially from the premolars in the mandibular arch. So this basically is talking about the differences between maxillary and mandibular premolars. The maxillary first and the second premolar are much more similar to each other than the mandibular premolars. पहले भी मैंने बताया. Let me get the mandibular premolars. Okay, so he says कि जो मैक्सिलरी प्रीमोलर्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एज कम्पेयर टू दी, सॉरी लेट मी जस्ट सेटल डाउन. मैक्सिलरी प्रीमोलर्स एक दूसरे से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं एज कम्पेयर टू दी मैंडिबुलर प्रीमोलर्स. ठीक है, तो ये मैं मैंडिबुलर प्रीमोलर्स ले आई हूँ और ये मैक्सिलरी प्रीमोलर्स थे. ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये जो मैक्सिलरी प्रीमोलर्स हैं ये एक दूसरे से ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दी मैंडिबुलर प्रीमोलर्स. मेजर डिफरेंस क्या है कि मैंडिबुलर प्रीमोलर में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ कस्प भी इधर वेरी कर रहा है. इसमें एक है और इसमें 3 है, सॉरी 2 हैं. टोटल इसमें 3 हैं और इसमें 2 हैं. तो नंबर ऑफ कस्प्स और वैसे जनरल फॉर्म मैक्सिलरी प्रीमोलर्स का एक दूसरे से ज़्यादा रिजेंबल करता है एज कम्पेयर टू दी मैंडिबुलर प्रीमोलर्स. In maxillary arch, the first premolar is generally a little larger than the second premolar, while in the mandibular arch, the first premolar is considerably smaller. मतलब कि mandibular arch में different opposite होता है. Maxillary first और second premolar हैं ये. अगर आप गौर से देखें तो maxillary first premolar बड़ा है और second छोटा है, जबकि अगर आप मैंडिबुलर को देखें तो उसमें सेकंड बड़ा है और फर्स्ट छोटा है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में फर्स्ट इज बिगर एंड सेकंड इज स्मॉलर, वेयर एज मैंडिबुलर के अंदर इट इज ऑपोजिट. द क्राउन्स ऑफ द मैक्सिलरी प्रीमोलर्स आर नॉर्मली वाइडर buccolingually than mesiodistally, while the mandibular premolars have buccolingual and mesiodistal crown dimensions approximately equal. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है. buccolingual डायमेंशन कौन सी होती है? ये बकल साइड है दांत की और ये जो छोटी वाली है ये लिंगुअल साइड है. अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं सो ये दांत ऐसे पड़ा होता ना, तो ये इसकी फेशियल साइड है और ये इसकी ऑपोजिट लिंगुअल साइड है. तो अगर यहाँ से आप देखें तो दिस इज द बकल साइड ऑफ द टूथ एंड दिस इज द लिंगुअल साइड. तो ये जो डायमेंशन है ये कौन सी डायमेंशन हुई? बको लिंगुअल और ये मीजियो डिस्टल. मैक्सिलरी प्रीमोलर्स की ये वाली जो डायमेंशन है बको लिंगुअल डायमेंशन, इट इज वाइडर एंड दिस डायमेंशन इज नैरोअर. द मीजियो डिस्टल डायमेंशन इज नैरोअर. जबकि मैंडिबुलर दांतों में this dimension and this dimension, which means the buccolingual and mesiodistal dimension, are approximately equal. Very important point. Maxillary premolars possess 2 cusps of nearly equal size, whereas the mandibular premolars have more than 2 cusps and the lingual cusps are normally less prominent as compared to the फेशियल कस्प्स. अगर अब आप नंबर ऑफ कस्प्स देखें तो एक तो इसमें 2 कस्प हैं, दूसरा ये कि जो इसका बकल और लिंगुअल कस्प है इनके साइज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. लेकिन अगर आप मैंडिबुलर दांतों को देखें तो उसमें आपको साफ क्लियरली अप्रिशिएट कर सकेंगे कि बकल बहुत बड़ा है कस्प और लिंगुअल बहुत छोटा कस्प है. तो मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में बकल और लिंगुअल साइज कस्प के साइजेस और प्रोमिनेंसेस बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं, जबकि मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में बकल और लिंगुअल कस्प ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, हाइट डिफर करती है उनकी भी. When viewed from the proximal surface, the crown of maxillary premolars has no lingual inclination, and this is pretty much
it is pretty much centered over the root. In contrast, the crowns of mandibular premolars are heavily inclined towards the lingual surface. ये एक कॉमन फीचर है जो हर मैंडिबुलर दांत का होता है. अगर आप प्रॉक्सिमल साइड से देखें तो आपका जो मैक्सिलरी प्रीमोलर है, इट इज़ सेंटर्ड ओवर द रूट. इसकी कोई लिंगुअल इंक्लिनेशन नहीं है. अगर इसी को मैं आपको मैंडिबुलर प्रीमोलर के साथ कंपेयर करूं तो ये देखो इसकी लिंगुअल साइड के ऊपर कितनी ज़्यादा इंक्लिनेशन है. इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, देखो कितनी ज़्यादा इस दांत की लिंगुअल साइड के ऊपर इंक्लिनेशन है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि हर मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टूथ के अंदर होता है कि मैक्सिलरी जो टूथ होता है उसकी लिंगुअल इंक्लिनेशन नहीं होती है और उसका जो मैंडिबुलर काउंटर पार्ट होता है उसकी लिंगुअल इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होती है. The maxillary first premolar is the only premolar which exhibits two root branches. Maxillary premolar first has two root branches, जबकि बाकी सारे premolars का एक ही रूट होता है. ये बहुत important point है to remember. Maxillary first premolar has two root branches और किसी प्रीमोलर की दो रूट्स नहीं होती, सब सिंगल रूटेड होते हैं. सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्रीमोलर्स. मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में मैक्सिलरी प्रीमोलर्स एक दूसरे से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, मैंडिबुलर प्रीमोलर्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा रिजेंबल नहीं करते. मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में फर्स्ट प्रीमोलर इज़ बिगर एंड द सेकंड प्रीमोलर इज़ स्मॉलर, which is opposite in the mandibular arch. The crowns of the maxillary premolars are buccolingually wide and mesiodistally narrow, whereas mandibular premolar का crown buccolingually और mesiodistally same width होती है उसकी approximately. Maxillary premolars का के buccal और lingual cusp approximately same size के होते हैं, जबकि mandibular में buccal cusp ज़्यादा बहुत prominent होता है और lingual बहुत ज़्यादा कम prominent होता है. lingual side से देखें तो बकल टूथ सेंटर्ड ओवर द रूट है, उसकी कोई लिंगुअल इंक्लिनेशन नहीं है, लेकिन मैंडिबुलर दांत की बहुत ज़्यादा लिंगुअल इंक्लिनेशन होती है. मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की सिर्फ दो रूट्स होती हैं और मैंडिबुलर फर्स्ट सेकंड और मैंडिबुलर मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर की एक एक रूट होती है. मतलब कि सिर्फ एक ही दांत है प्रीमोलर्स में जिसकी दो रूट्स होती हैं और वो है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर. ये हो गए हमारे जनरल डिफरेंसेस बिटवीन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर इन साइज प्रीमोलर्स. अब हम जाएंगे आर्च पोजीशन की उसके ऊपर मैक्सिलरी प्रीमोलर्स के ऊपर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी आती हो वो है आपके मैक्सिलरी प्रीमोलर्स के दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस. सबसे पहले तो अगर मैं चारों को इकट्ठा रखूं तो आप कैसे डिफरेंशिएट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मैक्सिलरी है और कौन सा मैंडिबुलर है. द बिगर टीथ एंड द मोर ब्लॉकी वंस आर द मैक्सिलरी. सो दिस इज अ ब्लॉकी टूथ जिसमें बकल और लिंगुअल कस्प अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज के हैं. दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉकी टूथ जिसमें मैक्सिलरी और बकल और लिंगुअल कस्प अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज के हैं. अब ये जो दो इन दोनों से छोटे दांत आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें से वन हैज़ टू लिंगुअल कस्प्स, ये देखो, एंड वन हैज़ अ वेरी स्मॉल लिंगुअल कस्प, ये आपके मैंडिबुलर प्रीमोलर्स हैं. तो जनरली अगर आप मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रीमोलर्स के साइज़ के अंदर कंपेयर करें तो मैक्सिलरी प्रीमोलर्स बड़े हैं और ब्लॉकी हैं, ज़्यादा स्क्वायरिश से हैं, और मैंडिबुलर प्रीमोलर्स छोटे हैं और उनकी लिंगुअल इंक्लिनेशन भी बहुत ज़्यादा है. तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिलरी कौन से हैं और मैंडिबुलर कौन से हैं. अब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर आपको पता चल गया. अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैक्सिलरी फर्स्ट कौन सा है और मैक्सिलरी सेकंड कौन सा है. द ईजीएस्ट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज द साइज. मैक्सिलरी फर्स्ट इज बिगर. अगर दोनों के साइज को कंपेयर करें
तो ये वाला ज़्यादा बड़ा ब्लॉकी स्क्वायरिश है और ये कंपैरेटिवली छोटा है. सो द बिगर वन इज द फर्स्ट प्रीमोलर, this one maxillary first premolar, and the smaller one is the maxillary second premolar. दूसरा बहुत important point of identification है marginal ridge के अंदर ये marginal groove. Mesial marginal groove is another very important point of identification of this tooth. Mesial marginal ridge के अंदर एक groove होता है जो कि बहुत prominently नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं mesial marginal groove. This one. ठीक है. पहला डिफरेंस साइज का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. एक बहुत बड़ा है जो कि फर्स्ट है और दूसरा उससे थोड़ा सा छोटा है विच इज सेकेंड. दूसरा मीजियल मार्जिनल रिज के अंदर एक ग्रूव होता है विच इज कॉल्ड द मीजियल मार्जिनल ग्रूव. तीसरा जो इतना इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इतना अच्छा नज़र नहीं आता, मीजियल सरफेस के ऊपर यहाँ पर सर्वाइकल थर्ड में समवेयर हेयर आपको एक कनकैविटी सी फील हो रही होती है, उसको हम कहते हैं मीजियल कनकैविटी. ये 3 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशंस हैं between the first and the second maxillary premolars. The first maxillary premolar is bigger in size, this one. The first maxillary premolar has a mesial marginal ridge, this one. The first maxillary premolar has a mesial concavity in the cervical third of the mesial surface. तो ये 3 identification points हैं first और second के दरमियान में. Now before I proceed, I am going to answer Moz का सवाल. Moz Iqbal has a question and he says, ma'am, can we say that maxillary के buccal और lingual cusps are prominent and broadly pointed for identification? Yes, you could say that the buccal and lingual cusps of maxillary premolars are equally pointed as compared to the mandibular ones. उसमें lingual इतना prominent नहीं होता. Okay, so I'm going to read out the permanent maxillary first premolar. General characteristics. Arch position. The maxillary first, अब हम maxillary first premolar की बात करने लगे हैं. आइडेंटिफाई कर लिया ना हमने कि मैक्सिलरी फर्स्ट कौन सा और सेकंड कौन सा है. बड़ा वाला मैक्सिलरी फर्स्ट है जिसमें मीजियल मार्जिनल रिज है वो फर्स्ट है, जिसमें मीजियल कनकैविटी होती है वो फर्स्ट है. तो अब हम सेकंड को साइड पे कर देंगे और अब हम सिर्फ फर्स्ट के बारे में बात करेंगे. ठीक है. आर्च पोजिशन ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर. द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर इज द फोर्थ permanent tooth from the midline. It shares a mesial contact with the permanent maxillary canine and distal contact with the second premolar. It replaces the deciduous maxillary first molar, hence it is a succedaneous tooth. उसके बाद इसका यूनिवर्सल नंबर में नंबर लिखा हुआ है राइट और लेफ्ट दोनों का. आपको सारे नंबरिंग सिस्टम में नंबर्स आना चाहिए, नंबर करना आना चाहिए राइट लेफ्ट दोनों को. जनरल फॉर्म एंड फंक्शन. The outline from the occlusal aspect is roughly hexagonal or six-sided, while the general shape from the proximal aspects is trapezoidal. From the facial aspect, the shape is pentagonal, quite similar to the maxillary canine. The first premolar exhibits two cusps very similar to each other and two root branches in majority of the specimens. In mastication, the first premolar basically serves as a grinding tooth and contributes to the aesthetics and phonetics roles as well. अच्छा, जनरल फॉर्म और फंक्शन क्या है अब इसका. सबसे पहले तो हम आ जाएं कि इसकी कितनी सर्फेसेस हैं. वी हैव अ फेशियल सरफेस, ऐसे पड़ा होता है ना ये दांत. वी हैव अ फेशियल सरफेस. दिस फेशियल सरफेस लुक्स लाइक अ पेंटागन, बिल्कुल वैसी जैसे केनाइन की फेशियल सरफेस दिखती थी. पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4 5. 5 साइडेड पेंटागन की तरह दिखता है ये फेशियल एस्पेक्ट से. फेशियल बकल एस्पेक्ट मतलब. लिंगुअल एस्पेक्ट से देखें तो लिंगुअल एस्पेक्ट से भी ये आपको एक छोटा पेंटागन नजर आता है. इट हैज़ 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स. ऑक्लूजल एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो आपको ये हेक्सागन की तरह नजर आता है. इसकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6.
6 साइडेड नज़र आता है आपको ये ऑक्लूजल एस्पेक्ट से, विच इज़ अ हेक्सागन। प्रॉक्सिमल साइड से अगर आप देखें तो ये आपको ट्रेपीजॉइड की तरह नज़र आता है। द लॉन्गर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजॉइड इज एट द सर्वाइकल, सो दिस सर्वाइकल, ऑक्लूजल, लिंगुअल एंड बकल। ये एक प्रॉक्सिमल साइड है, दूसरी प्रॉक्सिमल साइड भी बिल्कुल वैसी ही ट्रेपीजॉइड की तरह दिखती है। तो आपको ये फॉर्म नज़र आती है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की। प्रॉक्सिमल साइड से आपको ये ऐसा नज़र आता है, ठीक है। ऑक्लूजल, CEJ, बकल एंड लिंगुअल, दोनों प्रॉक्सिमल साइड्स आपको ऐसी नज़र आती हैं। एंड दिस इज अ ट्रेपीजॉइड, ठीक है। फेशियल साइड से ये आपको ऐसा नज़र आता है, CEJ, mesial, distal and 2 occlusal slopes, 1 2 3 4 5 pentagon। लिंगुअल साइड से भी आपको ये स्मॉलर पेंटागन की तरह ही नज़र आता है, जबकि ऑक्लूजल एस्पेक्ट से ये आपको ऐसा नज़र आता है। ये आपको बकल साइड नज़र आ रही है, ये आपको 2 मार्जिन्स नज़र आ रही हैं, और ये आपको नैरोअर लिंगुअल साइड नज़र आ रही है। सो दिस इज व्हाट यू सी फ्रॉम द ऑक्लूजल एस्पेक्ट। हेक्सागन 6 साइडेड, 2 buccal halves, 2 lingual halves, 1 mesial and 1 distal. Mesial and distal are made up of the marginal ridges. This is how the maxillary first premolar looks from all the aspects. Maxillary first premolar के 2 cusp होते हैं, एक बकल और एक लिंगुअल, जैसे कि इसमें आपको नज़र आ रहा है, एक बकल और एक लिंगुअल, और इसके 2 रूट्स होते हैं और किसी प्रीमोलर के 2 रूट ब्रांचेस नहीं होते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंक्शन क्या है? मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर का फंक्शन बेसिकली ग्राइंडिंग होता है, उसके अलावा ये एस्थेटिक्स और फोनेटिक्स में भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता जितने एंटीरियर टीथ करते हैं, लेकिन जितने कम मोलर्स करते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा एस्थेटिक्स में कंट्रीब्यूट करता है। देन इज़ द डेवलपमेंटल टेबल। डेवलपमेंटल टेबल को आपको मेमोराइज करना होगा अनफॉर्चुनेटली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टूथ इंडिविजुअली, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बकल एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। बकल एस्पेक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। जिन लोगों के पास भी मैक्सिलरी राइट प्रीमोलर का मॉडल आया है, उन लोगों के दांतों में कुछ खराबी होगी। आई थिंक लेफ्ट वालों का मॉडल ठीक है। जिन लोगों के पास भी राइट प्रीमोलर आया है, मैक्सिलरी फर्स्ट राइट प्रीमोलर, उनका जो मीजियल मार्जिनल रिज है, ये वाला रिज, ये ऑपोजिट जगह पे बना हुआ है। बाकी सारा दांत ठीक है, लेकिन ये जो रिज है ये इनका डिस्टल मार्जिन में बना हुआ है। इसलिए प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज व्हेन आई टेल यू अबाउट सर्टेन फीचर्स। मैं साथ साथ बताऊंगी क्योंकि मेरे मॉडल में भी उल्टा बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बकल एस्पेक्ट। पहले तो मैंने बताया कि इस दांत के एस्पेक्ट्स कितने हैं इस दांत के एस्पेक्ट्स, कितनी सर्फेसेज हैं। यू हैव अ बकल सर्फेस, अ लिंगुअल सर्फेस, 2 प्रॉक्सिमल सर्फेसेज एंड एन ऑक्लूजल सर्फेस। हम बात कर रहे हैं बकल सर्फेस के बारे में, विच इज दिस फेशियल सर्फेस या बकल सर्फेस, क्योंकि पोस्टीरियर दांत है तो ये इसको बकल सर्फेस कहते हैं। बकल सर्फेस जो है आपकी इस दांत की, इट लुक्स लाइक अ पेंटागन। 5 साइडें हैं इसकी, ठीक है। एक इसका CEJ है जो आपको ये नज़र आ रहा है, एक इसका मीजियल मार्जिन है, एक इसका डिस्टल मार्जिन है, और 2 इसके ऑक्लूजल एस्पेक्ट के स्लोप्स हैं।
I'm going to read out and then I'm going to explain on the model. General considerations of the buccal aspect. From the facial aspect, the pentagonally shaped crown bears close resemblance to the maxillary canine. अगर आप इस दांत को यहाँ से देखें ना बकल सर्फेस से, तो आप इसमें और केनाइन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा केनाइन से रिजेंबल करता है. दोनों केनाइन फेशियल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा केनाइन से रिजेंबल करता है. हाउएवर डिफरेंस क्या है, पता कैसे चलता है कि डिफरेंट है? द केनाइन क्राउन इज समवट लार्जर इन साइज. केनाइन का जो क्राउन होता था उसकी जो ये वाली हाइट होती थी जिसको हम कहते हैं ऑक्लूजो सर्वाइकल हाइट, वो ज़्यादा होती थी. इसकी ऑक्लूजो सर्वाइकल हाइट कम है क्योंकि सारे पोस्टीरियर टीथ की ऑक्लूजो सर्वाइकल हाइट कंपैरेटिवली कम होती है. दूसरा, केनाइन का जो कस्प था वो बहुत प्रोमिनेंट था, इसका कस्प इतना प्रोमिनेंट नहीं होता. ठीक है. However, the canine crown is somewhat larger in size with a prominent cusp tip, and the crown of the second premolar is smaller with a less prominent cusp tip. The occlusal cervical dimension of the crown is less than for any anterior teeth but greater than that of the second premolar or molars. अच्छा, तो अगर आप इस एस्पेक्ट से देखें विच इज़ द बकल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ, तो ये जो एस्पेक्ट है ये फेशियल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है केनाइन के. क्यों? क्योंकि ये भी पेंटागोनल है और वो भी पेंटागोनल था. फ़र्क क्या है कि एक तो केनाइन का ये वाला एस्पेक्ट फेशियल एस्पेक्ट इस फेशियल एस्पेक्ट से बड़ा था, नंबर 1. नंबर 2, केनाइन की जो कस्प टिप थी वो बहुत प्रोमिनेंट थी. नंबर 3, केनाइन की जो ऑक्लूजो सर्वाइकल हाइट थी, ये वाली जो डायमेंशन थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दिस. ये 3 डिफरेंसेस आपके बकल एस्पेक्ट ऑफ केनाइन और बकल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मैक्सिलरी प्रीमोलर हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मार्जिन्स ऑफ द बकल एस्पेक्ट. क्या है बकल एस्पेक्ट के मार्जिन्स? शेप तो हो गई पेंटागन. अब वो 5 मार्जिन्स क्या हैं? आपके पास ये सर्वाइकल मार्जिन है जो रूट एपेक्स की तरफ कर्व कर रहा है. देन यू हैव अ मीजियल मार्जिन, देन यू हैव अ डिस्टल मार्जिन, देन यू हैव 2 बकल स्लोप्स जिनको हम कहते हैं मीजियो ऑक्लूजल एंड डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप्स. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम केनाइन में नेम करते थे इन स्लोप्स को. जो मीजियल साइड पे होती है उसको मीजियो ऑक्लूजल, जो डिस्टल साइड पे होती है उसको हम डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप कहते हैं. तो ये हो गई हमारी 5 ऑक्लूजल फेशियल एस्पेक्ट की बाउंड्रीज. स्टार्टिंग विद द मीजियल मार्जिन. द मीजियल मार्जिन joins the mesio-occlusal slope to create an obtuse mesio-occlusal angle. The contour of the mesial outline is shallowly concave from the contact area to the cervical line. The crest of curvature at the contact area is located near the junction of occlusal and middle thirds. Okay. So how would you know which is the mesial side and which is the distal side before proceeding to explain the mesial side? How would you know which is the mesial side and which is the distal side? अगर आप गौर से इस दांत को देखें तो एक मार्जिन फेशियल सरफेस से आपको लंबा नज़र आएगा और एक मार्जिन आपको प्रॉक्सिमल मार्जिन आपको छोटा नज़र आएगा. इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, ये वाला जो मार्जिन है ये आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, इसकी हाइट कंपैरेटिवली इस मार्जिन से कम है. सो द लॉन्गर मार्जिन इज़ द मीजियल मार्जिन एंड द शॉर्टर मार्जिन इज़ द डिस्टल मार्जिन. दिस वन इज़ शॉर्टर, दिस इज़ द डिस्टल मार्जिन एंड दिस वन इज़ लॉन्गर, दिस इज़ द mesial margin. So the mesial margin is longer and the distal margin is shorter. Second identification point that this angle, the mesio-occlusal angle, is sharper and the disto-occlusal angle, this one is comparatively rounder, less prominent होता है, round होता है. तो ये 2 important identification points हैं mesial और distal साइड को आइडेंटिफाई करने में. तो क्या पता चला कि ये साइड मीजियल साइड है और ये साइड डिस्टल साइड है, बिकॉज this has a pointed, comparatively prominent pointed angle and a longer margin. The shorter margin and a rounded angle is the
डिस्टल साइड। तो मीजियल साइड के बारे में वो क्या कह रहा है कि मीजियल जो मार्जिन है दैट इज कन्वेक्स, लेकिन वो कॉन्टैक्ट एरिया के बाद नीचे सर्वाइकल थर्ड तक कनकेव होता है एंड द कॉन्टैक्ट एरिया इज समवट एट द ऑक्लूजल एंड द मिडल थर्ड्स यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस मार्जिन मीट्स द ऑक्लूजल टेबल एट द मीजियो ऑक्लूजल एंगल एंड दैट एंगल इज प्रोमिनेंट। ये वाला एंगल, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, दिस एंगल इज प्रोमिनेंट। whereas the distal margin is slightly shorter, अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये वाला मार्जिन हल्का सा छोटा है। the distal margin is slightly shorter but otherwise is much the same as the mesial margin। दोनों के अंदर और कोई खास डिफरेंस नहीं है सिवाय इनकी हाइट के और दूसरा डिस्टो ऑक्लूजल एंगल के। the distal margin meets the occlusal surface at a much rounded, less prominent angle and the cervical concavity is not as deep। यहाँ पर मतलब जो डिस्टल आउटलाइन है वो पूरा का पूरा कन्वेक्स है, ऊपर से लेकर डिस्टो ऑक्लूजल एंगल से लेकर सर्वाइकल थर्ड तक यहाँ पे कोई कनकैविटी नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि सर्वाइकल थर्ड और या सर्वाइकल लाइन और कॉन्टैक्ट एरिया के दरमियान में हल्का सा कनकेव सा, ये ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर डिस्टल साइड का इज लोकेटेड स्लाइटली सर्वाइकल टू द मिडल टू द मीजियल वन। ये ऑक्लूजल और मिडल थर्ड के जंक्शन पे था तो ये उससे थोड़ा सा सर्वाइकली प्लेस्ड होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द मीजियल एंड द डिस्टल मार्जिन्स। ऑक्लूजल आउटलाइन को अगर आप देखें तो ऑक्लूजल मार्जिन ऑफ दिस टूथ इज सिमिलर टू द इंसाइजल मार्जिन ऑफ मैक्सिलरी केनाइन। द फेशियल cusp tip is pronounced, although it is not as prominent as that for the maxillary canine was. The cusp tip divides the occlusal outline into two unequal portions. The mesio-occlusal slope is longer and straighter, while the disto-occlusal slope is shorter and more curved. The cusp tip is offset slightly towards the distal, जिसकी वजह से obviously mesio-occlusal slope longer हो जाती है. This relationship of the occlusal slope normally exists prior to attrition and it may be altered because of the wear pattern. Developmental depressions are sometimes present and pass over the occlusal margin with resultant concavity or notch in the outline, in each outline of the occlusal slopes. मासूमा मैं डिसाइड करूँगी बेटा कि कितना मैंने एक लेक्चर में पढ़ाना है, प्लीज़ डोंट टेल मी। मैं एक चीज़ जो मैंने शुरू की हुई आई कैन नॉट स्टॉप इट इन द मिडल, नेक्स्ट लेक्चर में फिर टेम्पो नहीं बनता। ओके, द ऑक्लूजल आउटलाइन, दिस इज योर ऑक्लूजल आउटलाइन ऑफ द बकल एस्पेक्ट। द ऑक्लूजल आउटलाइन इज डिवाइडेड इंटू टू unequal halves. One half is the mesio-occlusal slope, obviously जो mesial side पे है, and the other is the disto-occlusal slope जो डिस्टल साइड के ऊपर है। ये जो मीजियो-ओक्लूजल स्लोप है ये वाला स्लोप लंबा है और डिस्टो-ओक्लूजल स्लोप स्लाइटली छोटा है और इसमें देखो हल्की सी ये कनकैविटी भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो कनकैविटी आपको नज़र आ रही है, हल्का सा ये जो इसकी स्लोप नज़र आ रहा है, ये निशानी है डिस्टो-ओक्लूजल स्लोप की, पहली निशानी। दूसरी निशानी ये है कि डिस्टो-ओक्लूजल स्लोप छोटा है और मीजियो-ओक्लूजल स्लोप बड़ा है। तो ये एक और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है of this of the mesial and the distal sides of this tooth। तो आपने गलत साइड पे जिनका ये बना हुआ है ना ग्रूव, उससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। दिस वॉज ऑल अबाउट दी बाउंड्रीज। एक बाउंड्री रह गई है एंड दैट इज दी सर्वाइकल आउटलाइन। सर्वाइकल आउटलाइन जो है आपका CEJ, दिस वन, इट कर्व्स इवनली टूवर्ड्स द रूट एपेक्स, लेकिन इसका जो डेप्थ ऑफ कर्वेचर है वो एंटीरियर टीथ से ऑब्वियसली कम होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिन्स ऑफ द बकल सरफेस। अगर यही मार्जिन्स मैं इस टेबल पे ड्रॉ करूँ, सॉरी नोटबुक पे ड्रॉ करूँ, तो आपके पास CEJ कर्विंग इवनली टूवर्ड्स द रूट एपेक्स, देन यू हैव अ शॉर्ट डिस्टल मार्जिन, अ लॉन्ग मीजियल मार्जिन, a pointed mesio-occlusal angle, longer, okay, so this is your distal side, this is your mesial side, this is your CEJ and this is your occlusal
एस्पेक्ट जिसमें एक स्लोप आपकी डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप है और एक स्लोप जो आपकी मीजियल साइड पे है दैट इज योर मीजियो ऑक्लूजल स्लोप. डिस्टल आउटलाइन इज शॉर्टर, इधर लिख रही हूं मैं, इट इज शॉर्टर एंड द डिस्टो ऑक्लूजल एंगल दिस वन इज नॉट वेरी prominent. ठीक है. Mesial outline is longer and this angle which is the mesio-occlusal angle is prominent. ठीक है. फिर आ जाती हैं आपकी ये slopes. Mesio-occlusal slope is longer and disto-occlusal slope is shorter. ये बहुत important points हैं. मीजियल आउटलाइन में कॉन्टैक्ट एरिया मिडल और ऑक्लूजल थर्ड्स के जंक्शन पे होता है और डिस्टल हल्का सा उससे नीचे होता है, सर्वाइकली प्लेस्ड होता है. दिस इज ऑल अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द बकल सरफेस. अब हम आ जाते हैं बकल सरफेस के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो बकल सरफेस के ऊपर आपको नजर आता है वो होता है बकल रिज, जो बकल कस्प टिप से डिसेंड कर रहा होता है अबाउट समवेयर इन द मिडिल थर्ड जाके फेड आउट करता है. दिस linear convexity that you can see on the buccal surface and feel with your finger is your buccal ridge. This is descending from the buccal cusp टेप ऑन टू दी बकल सरफेस. ये आपकी बकल रिज है. ठीक है. दिस इज योर बकल रिज. बकल रिज की दोनों साइड्स के ऊपर, साइड ए और साइड बी, ठीक है, इन दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास अगर आप फिंगर रन करें तो आपको हल्की हल्की सी डिप्रेशंस यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर डिप्रेशन नज़र आता है. मैं मार्कर से ड्रॉ करने लगी हूँ ये डिप्रेशंस. एक आपको यहाँ पर नज़र आएगा अगर आप अपनी फिंगर इसके ऊपर रन करें, एक आपको यहाँ पे, मतलब बकल रिज की मीजियल और डिस्टल साइड्स के ऊपर, मीजियल और डिस्टल साइड्स के ऊपर आपको हल्के हल्के से डेवलपमेंटल डिप्रेशंस नजर आते हैं. द वन ऑन द मीजियल साइड इज द मीजियोबकल डेवलपमेंटल डिप्रेशन एंड द वन ऑन द डिस्टल साइड इज द डिस्टोबकल डेवलपमेंटल डिप्रेशन. ये वही डेवलपमेंटल डिप्रेशंस हैं जो एंटीरियर टीथ पे भी हमने पढ़े थे. बिल्कुल उसी तरह के काउंटर पार्ट्स आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं. सर्वाइकल थर्ड के अंदर यहाँ पर इम्ब्रिकेशन लाइंस भी आपको कभी कभार नज़र आती हैं पैरेलल टू योर CEJ. और हाइट ऑफ कंटोर इस सरफेस का आपका सर्वाइकल थर्ड के अंदर होता है. दिस इज ऑल अबाउट द बकल एस्पेक्ट. बकल एस्पेक्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट फीचर बकल रिज है जो कस्प टिप से CEJ की तरफ ट्रैवल कर रही होती है, जिसकी वजह से मिडिल थर्ड इज़ वेरी वेल डेवलप्ड. इसकी दोनों साइड्स के ऊपर फेंट डिप्रेशंस होते हैं. द डेवलपमेंटल डिप्रेशंस जो मीजियल साइड पे है वो मीजियल डेवलपमेंटल डिप्रेशन है और जो डिस्टल साइड पे है वो डिस्टल डेवलपमेंटल डिप्रेशन है. सर्वाइकल थर्ड में CEJ के पैरेलल आपको इम्ब्रिकेशन लाइंस भी नज़र आती हैं. इतनी प्रोमिनेंट मॉडल पे नहीं है लेकिन द बुक सेज के हैं, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम. इस पूरी सरफेस का जो हाइट ऑफ कंटोर है वो आपका सर्वाइकल थर्ड के अंदर होता है. यहाँ पर मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है. दिस इज ऑल अबाउट द बकल सरफेस. द रेस्ट ऑफ द सर्फेसेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट in the next lecture at 1:30. Some people have a few questions and only we have one question. Acha. Meanwhile, while I am answering this question, all of you are please requested to mark yourselves present or P in the comment section. Okay, Rimsha has a question. Rimsha Faisal says that explain the occlusal outline. Warda Mehdi. बेटा मेरे पास ब्लर नहीं आ रहा. आई थिंक आपके इंटरनेट में कोई मसला इस वजह से ब्लर आ रहा है. जब मैं इसको वापस पोस्ट कर दूंगी तो आप दोबारा इसको व्यू कर सकती हैं. रमशा सेज प्लीज occlusal आउटलाइन दोबारा एक्सप्लेन कर दें. अच्छा ठीक है.
बकल एस्पेक्ट की ऑक्लूजल आउटलाइन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बकल एस्पेक्ट की ऑक्लूजल आउटलाइन दो अनइक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं, दोनों को हम ऑक्लूजल स्लोप्स कहते हैं। जो मीजियल साइड पे होती है उसको हम कहते हैं मीजियो ऑक्लूजल स्लोप, और जो डिस्टल साइड के ऊपर होता है स्लोप उसको हम कहते हैं डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मीजियो ऑक्लूजल स्लोप कौन सा है और डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप कौन सा है? मीजियो ऑक्लूजल स्लोप ये वाला है। अगर आप गौर से देखें तो ये लंबा स्लोप है। जो लंबा स्लोप है वो मीजियो ऑक्लूजल स्लोप है, और जो छोटा स्लोप है वो डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप है, दिस वन। और डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप में हल्का सा एक बेंड या डिप भी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं ऑक्लूजल एस्पेक्ट के। ऑक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ द बकल सरफेस is divided into two unequal halves. The longer half is the mesio-occlusal and the shorter half is the disto-occlusal with a slight dip, जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि जो आपका कस्प टिप है ये सेंटर में नहीं है, ये डिस्टल साइड के ऊपर ऑफसेट है। ऑब्वियसली डिस्टल साइड के ऊपर ऑफसेट है, तभी आपका mesio-occlusal स्लोप बड़ा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्लूजल आउटलाइन। रिमशा, आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर नहीं आई तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। डॉक्टर सफीउल्लाह, प्लीज मार्क देयर अटेंडेंस। 53 हो रहे हैं, 54 तक प्लीज सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें सो दैट आई कैन एग्जिट। नेक्स्ट लेक्चर 130 पर है। 130 पे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Please hurry up. Okay, is she there? Please tell me when it's done. फोर्टी 41 अटेंडेंस होनी चाहिए मेरे पास। 41। कोई रह गए तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे बिफोर आई एग्जिट द सेशन। Okay, thank you very much guys. I will see you at 1:30. Allah Hafiz.